Class 6th Science, Chapter 5, and this chapter is Separation of Substances. So, under this chapter, the introduction says that it contains methods of separation, and the methods of separations are hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration, as well as evaporation, use of more than one method of separation. So, these are the topics that this chapter contains. So, under this introduction, in our daily life there are many instances, कई बार ऐसे chances आते हैं और ऐसा घटनाएं होती हैं when we notice a substance being separated फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स. तो हम लोग कई बार नोटिस करते हैं कि किसी चीज़ से हम लोग सेपरेट करते हैं. जैसे सुबह चाय बनाते हैं तो टी लीव्स और उसके चाय को अलग कर देते हैं. इसी तरीके से सुबह रोटी बनाते समय आटा को गूँथने से पहले देन आटे को भी सीविंग किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है. यस, राइस में से कुछ कंकड़ पत्थर थोड़ा बहुत होता है तो निकाला जाता है. तो छोटी मोटी चीज़ें सेपरेशन किया जाता है. तो सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स आपने अपने लाइफ में कभी देखा हो. हियर वी कैन सी लाइक टी लीव्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. तो आपने हर दिन मॉर्निंग में आप सभी इंडियन लोगों ने लाइफ में देखा होगा कि टी लीव्स चाय बनाने के बाद सेपरेट किया जाता है विद स्ट्रेनर. एंड देयर इज यू कैन से दिस इज़ व्हाट स्ट्रेनर. और यहाँ से टी केटल से आ रहा है और यहाँ पे इस स्ट्रेनर में टी लिप्स रह जा रहा है एंड टी इज़ कमिंग इनटू दिस ग्लास. सो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल सेपरेशन मेथड दैट यू कैन से. grain is separated from the stalks while harvesting. I said that after suppose there is a crops in the field and there is a large field is there, and from the field when you are cutting the crops when you are cutting the crops then the crops are cut, and thereafter it is the cutting the crops is considered as harvesting. It is considered as what? Harvesting of the crops. Yes, and after the harvesting we are able to get a crop, and along with there some grains are there. Some grains in the what? There is some grains are attached with this. So when these grains are attached with this, तो हम लोग क्या करेंगे? तो this portion is known as a stalk of the, suppose this is in a rice plant, so this is known as a stalk, and then where the grains are attached in the top, it is grain. So the removal of these stalks and then these grains, this separation is known as threshing. So separation of grains from the stalks is known as threshing. So what we have seen here, the grain is separated from the stalks while harvesting. So harvesting करने के बाद there is a grains is separated from the stalks. Similarly, we can be able to see milk or curd is churned. So in a container you can see there is one container is here, or in this container there is a curd can be there, there can be a milk. By churning we are separating out the butter. तो दूध में से हम लोग क्या कर रहे हैं? Butter is separated from the milk or curd. And in the similar manner, you have studied earlier in this chapter cotton to separate from its seed from the fiber. So cotton और fiber को separate किया जाता है. That process is known as ginning. The ginning. So we have to learn the basic understanding of separation of substances in this chapter. Separation. So we have given this introduction. We are understanding this introduction, that what is the separation. Like we have seen here, grain is separated from the stalks, like known as threshing. Milk or curd is churned and separated the butter, and then cotton is separated
from the seeds of the from the cotton fiber known as ginning. So this is in a kind of what separation you can see. Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. आपने शायद नमकीन दलिया और पोहा खाया हो. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. तो आपने देखा होगा कि इसमें यदि चिलीज़ है, रेड चिलीज़ है, तो आप अपने हैंड से उसको सेपरेट आउट कर दिए होंगे. So this is also a separation. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. तो आप guavas निकाल देंगे, दूसरे बास्केट में रख देंगे. दिस वे एक बास्केट में मैंगो रह जाएगा, दूसरे में गुआवा. दिस इज ऑल्सो ए सेपरेशन. वॉट वुड यू डू दैट पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट. तो एक को दो हैं, किसी मिक्सचर में दो हैं, तो एक को हटा दो उसमें से, तो दोनों अलग हो जाएंगे. दिस इज द वे दैट इट इज द सेपरेशन कैन ऑल्सो बी डन. It seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? Suppose कि एक कंटेनर में there is a lots of sugar crystal, चीनी है और साथ में उसमें सैंड भी है. यदि उसे सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करेंगे? तो इट इज़ नाउ इट लुक्स टफ. Imagine you are given a glass of sand with salt. उसमें नमक दे दिया गया है, सैंड भी है, तो it is very hard to and it looks like impossible to separate. So impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सैंड हटाते जाऊं धीरे धीरे और इसमें हज़ारों सैंड होंगे, and it is very hard to separate sand from the salt in a mixture of a container. So this is looking is impossible, and therefore we need some kind of strategies process to separate. Here in this table we are going to see why do we separate substances. Let us see why do we separate substances. So separation process, let us see, and then purpose for which we do that separation, किस purpose से हम लोग करते हैं, and what do we do with this separate components. So separate components से हम लोग क्या करते हैं? तो first that we are watching here, it is separate stone from rice. Separate stone from rice. और दूसरे में हम देख रहे हैं churning milk to obtain butter, और एक में देख रहे हैं separate tea leaves from the tea. And then purpose, and if you'll see the purpose related to that in this area, the purpose here, it is talking about to separate two different but useful components. So here it is separating, I said that separating stone from rice, it is separating two different but useful component, क्योंकि हमारे लिए rice क्या है, एक important component है. And इसमें से हम लोग क्या करते हैं, the solid component we like a stone throw away this solid component. यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, what we do with the separate components, उसको stones का हमारे लिए use नहीं है, we throw away. Churning milk to obtain butter, here to remove non-useful components. तो इसमें से जब churning करेंगे तो हमें बटर मिल जाएगा और बचा हुआ पानी नॉन यूजफुल हो जाएगा. तो वी अगेन जो बचा हुआ पानी है वो एक प्रकार से इम्प्योरिटीज़ है, वी थ्रो अवे दोज अगेन इम्प्योरिटीज़. एंड सेपरेट टी लीव्स, इफ़ यू सी द टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, टी लीव्स में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ है चाय पत्ती, एंड इट इज़ हार्मफुल कंपोनेंट्स, वो खा नहीं सकते हैं, बट वी कैन यूज़ देम, वी यूज़ बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स, उसको दोनों को यूज़ कर सकते हैं. एंड देन टी लीव्स को हम लोग एज एन मैन्योर इन द सॉइल वी कैन यूज़, और टी हम लोग पी लेते हैं. तो सेपरेटेड टी लीव्स एंड टी आर इट इज़ बोथ आर यूटिलाइज्ड. Let us see the activity. We see that before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. So हमें वो देखना होता है बिफोर सेपरेट करने के लिए जो हमें हटाना है वो हार्मफुल है या नॉन यूजफुल है उस मिक्सचर में से. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभी हम लोग उसमें से निकालते हैं क्योंकि वो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं दोनों, और दोनों का अलग अलग यूज़ होता है.
तो दोनों सेपरेटेड कंपोनेंट का अलग अलग यूज़ होगा, दोनों यूज़फुल होंगे। समटाइम्स हम लोग जो दो मिक्सचर है उसमें से एक को निकाला वो यूज़फुल नहीं है और एक को निकाला दूसरा, तो दोनों अलग अलग एक यूज़फुल होगा और एक यूज़फुल नहीं होगा। तो ऐसे भी मिक्सचर रहते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल। जब सब्सटेंसेस हटाया जाता है तो पार्टिकल साइजेस, एक बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा वाला हो सकता है छोटे छोटे। एक ही में बड़े बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं साइजेस, और कुछ छोटे छोटे हो सकते हैं छोटे छोटे। सो दिस वे यहाँ पे सेपरेशन क्या हो सकता है, सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, कुछ बड़े कुछ छोटे। These may be in any three states of matter: solid, liquid और gases. These may be in any three states of matter. वो solid में भी हो सकते हैं, liquid में भी, gases में हो सकते हैं, उनका भी separation करना होता है। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? यदि बहुत सारे different properties वाले substances mixed हैं तो उसको कैसे किया जाए, that we'll have to see here. लेकिन एज विल ग्रो इन द हायर क्लासेस तो आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और मिलेगी, बट यहाँ पे भी आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो कि आप एक बेसिक लेवल पर समझ सकते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इन दिस मेथड्स ऑफ सेपरेशन सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर, पहले से मिक्स टुगेदर है तो हम लोग हाउ वी कैन डू, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग। सो here we are watching that there is a mixture of some kind of chickpeas, काबली चना है, कुछ मूंगफली है, ग्राउंड नट है, दे आर द डिफरेंट थिंग, देर आर सम पीज आर देयर। तो इसको हम लोग शायद हैंड पिकिंग के द्वारा, थ्रू द हैंड पिकिंग we can separate, yes or not? So with the help of hand picking we can separate, but there is an, I said that suppose there is chaff, this is ये आपका क्या है, that is a grain stalks, it is an stalks are there and this whole portion जिसमें grains हैं तो इसको क्या बोलते हैं, chaff। अब इस stalks से ये पोर्शन को हटाना, ग्रेन को हटाना और इसको तोड़ना, दैट इज नॉन एज थ्रेशिंग। तो ये प्रोसेस जो होता है ग्रेन को स्टॉक से रिमूव करना, दैट इज व्हाट इट इज नॉन एज व्हाट आई सेड दैट थ्रेशिंग। एंड यहाँ पर लिया गया है कि विंड की सहायता से कुछ, सपोज यहाँ पे राइस है और राइस और साथ में हस्क, उसमें जो गंदा हल्का सा मिला हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर इसको गिराया जाएगा ऊंचाई से, तो व्हाट विल हैपन, द विंड विल, और विंड ब्लो कर रहा हो तो भारी चीज़ें ये नज़दीक में गिर जाएंगी और हल्की चीज़ें दूर में, तो हस्क जो है दूर चला जाएगा और हमारा राइस जो है यहाँ पर ही गिर जाएगा। सो दिस वे विनोइंग, एंड दिस इज नॉन एज, वी कैन से दैट विनोइंग, बट वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल आल्सो विनोइंग। इस तरीके से अगेन वी आर डूइंग सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। एंड हेयर देयर इज एन, आई सेड दैट फ्लोर है, क्या आपके पास है फ्लोर, आटा है, और उस आटे में भी छोटे छोटे बांड्स और कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो आटे को हम लोग जब छानते हैं, छानना होता है, तो छान कर और प्योर आटा अलग हो जाता है, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो, आई सेड दैट इट इज़, you can say that it is a kind of sieving, channa. So we understood in through the pictures in a small understanding in basic form, very basics, what is hand picking, what is threshing, what is winnowing and sieving. Methods of separating substances that are mixed together, another methods are like evaporation, distillation, filtration or sedimentation, and then separating funnel. Here you can say that here it is, in this region there is a water is there and along with that there is a salt. तो ये saline water है, salt solution। जब हम लोग इसको heat देंगे, when we'll give the heat to it, so water will evaporate and they will leave behind। यहाँ पे आप देखेंगे salt particle यहाँ पे रह गया और water evaporate हो गया। This is, I said that evaporation is the process to separate what is salt dissolve in water, or water alag ho gaya and then we are able to get salt. Yes, here another that process that we can be able to see that there is an
water was there, and in that one, in this water there is a sand is mixed and that some dirt is mixed. और इस पानी के कंटेनर को थोड़ी देर के लिए मैंने शांत होकर एक जगह बिना हिलाए रख दिया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, दैट इज नॉन एज सेडिमेंटेशन, नीचे बैठ जाएगा। तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। व्हाट इज देयर, सेडिमेंटेशन नीचे। और फिर हम थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर का जो साफ पानी है, ऊपर का जो साफ पानी है वो बाहर निकाल लेंगे, दैट इज नॉन एज अ डिकांटेशन, दैट इज नॉन एज व्हाट, डिकांटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन मीन्स आपने कोई गंदा पानी है, आप धीरे छोड़ दिए कुछ देर के लिए शांत, देन व्हाट विल हैपन, दोज उसमें से जो सैंड पार्टिकल्स एंड अदर डर्ट पार्टिकल्स होंगे दे विल सेटल डाउन, मीन्स सेडिमेंटेशन, नीचे बैठेंगे सेडिमेंटेशन, और ऊपर में साफ पानी होगा, उस पानी को स्लोली हम लोग क्या करेंगे, टिल्ट करके उस पानी को, ऊपर का पानी को निकाल लेंगे, दैट इज नॉन एज अ डिकांटेशन। तो और यहाँ पर आपका सेडिमेंट बैठा रहेगा, पानी आपको धीरे धीरे यहाँ पर आकर हो गया। तो दिस इज योर व्हाट, क्लियर वाटर। अनदर आई सेड दैट देयर इज नॉन एज अ सेपरेटिंग फनल, ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट, सेपरेटिंग फनल। इफ वी आर सीइंग दैट सेपरेटिंग फनल, तो ये आपका क्या है, सेपरेटिंग फनल है। इसमें दो डिफरेंट लिक्विड हैं, यहाँ पर सपोज करिए वाटर है और ऑयल है, तो ऑयल ऊपर होगा वाटर, और यहाँ पर एक हमारे पास जो है स्टॉप कॉक है और स्टॉपर है, एक प्रकार से आप थोड़ा सा इसको स्टॉपर को खोले तो इसमें से तेल पानी निकलने लग जाएगा, और पानी यहाँ पे धीरे धीरे सेटल होने लग जाएगा, और ये पूरा इस बीकर में पानी धीरे धीरे क्या हो गया, भर गया। और जब तक ये पानी निकल गया, जैसे ही यहाँ पे तेल यहाँ तक आएगा रोक देंगे स्टॉपर से, और हमारा ऑयल अलग पानी अलग। तो सेपरेटिंग फनल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि देयर इज एन काइंड ऑफ व्हाट, वी कैन सेपरेट व्हाट, ऑयल एंड वाटर, वैसे दो लिक्विड को सेपरेट किया जा सकता है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दिस इज व्हाट आई सेड दैट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कि पानी हमें प्योर चाहिए, तो यहाँ पर सपोज करें कि इस जगह पे वाटर भरा हुआ है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, वाटर, इसको हीटिंग दिए और हीटिंग से गए ऊपर, और यहाँ पर आपका ठंडा होकर ये वाटर वेपर इस पर चिपका, ठंडा होकर कंडेंस हुआ, और कंडेंस होकर पानी इसमें आने लग गया। तो इस तरीके से हमने पानी की प्योरिटी प्राप्त कर ली। प्योरिटी डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने पानी, ये पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने हीट दिया, हीट से पानी बाहर निकला, और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है नीचे ही रह गया, पानी ऊपर गया प्योर, और वो ऊपर जाके ठंडा हुआ इस कंटेनर में, और ठंडा, आप सपोज करो यहाँ पे बर्फ़ भी रख दें तो वो ठंडा हुआ, और पानी में जैसे ही वाटर वेपर तुरंत वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके नीचे गिरेगा, और यहाँ पे प्योर वाटर आपको मिलेगा। दिस इज़ नॉन एज व्हाट, डिस्टिलेशन। तो आपने देखा कि एवोपरेशन है, डिस्टिलेशन है, सेडिमेंटेशन है, और व्हाट, सेपरेटिंग फनल है, जिससे वी कैन व्हाट, separate substances in a simple manner that we understood. Here you can see that how do the hand picking is taking place. So here it is, the hand picking is taking place, and with the help of hand picking separating, and here where it is we are going to see threshing. Threshing is how it is happening. Threshing में आपको पहले ही बताया है कि एक राइस और ग्रेन्स को उसके स्टॉक से अलग करना, तो यहाँ पे लोग पीट पीट करके उसके स्टॉक को अलग कर रहे हैं और ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं। तो ग्रेन्स को और स्टॉक्स को अलग किया जा रहा है पीट पीट कर। तो दिस इज़ द वे दैट थ्रेसिंग इज़ डन, जो पहले के लोग, आज से कई साल पहले ये सब किया जाता था। आज भी कुछ इन सम विलेजेस वेयर द technology has not reached, the people are threshing, means separating stocks from the grains, तो ये इसी तरीके से किया जाता है। Let us see about hand picking. Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. आप एक पैकेट को खरीद के फूड ग्रेन का आप क्लासरूम में लाएं। Now spread the grains on a sheet of paper, और उस ग्रेन्स को पेपर पे स्प्रेड कर दें। Do you find only one kind of grain on the sheet of the paper? पूरे पेपर पर एक ही प्रकार का ग्रेन है। Are there pieces of stone? क्या उसमें स्टोन है या कुछ हस्क है? हस्क का मतलब जो पहले चावल निकालने से पहले चावल के ऊपर में एक कवर होता है, उसको बोलते हैं हस्क।
तो क्या उसके ऊपर अभी भी कुछ चावल निकलने के बाद हस्क के कुछ पार्टिकल्स उसमें हैं, या ब्रोकन ग्रेन्स हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, या उसमें कुछ दाल के ग्रेन्स हैं या वीट के ग्रेन्स हैं, तो कुछ भी है तो उसको हटाना है। तो थोड़ा थोड़ा आपने अभी मम्मी को समटाइम्स यू हैव सीन एन एनी वन दोज हु आर हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट कर रहे हैं कुछ पार्टिकल्स। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन है तो स्टोन हटाएं, हस्क्स हैं तो हस्क हटाएं, एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। सो दिस इज द वे दैट हैंड पिकिंग, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, देर इज सम पार्टिकल्स, उसको ये पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं अलग से राइस के अलावा, इसको हटाया हैंड से हटाकर, फिर ये राइस आपका ठीक हो जाएगा एंड यू कैन कुक एंड ईट इट, उसको खा सकते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़। यदि बड़ा साइज का कुछ इम्प्योरिटीज़ होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, स्लाइटली लार्जर, द पीसेज ऑफ डर्ट हो, कुछ स्टोन्स हो, कुछ हस्क हो फ्रॉम द वीट या राइस और पल्सेस से निकालना हो तो किया जा सकता है। इट इज़ नॉट एवरीथिंग। तो थोड़े थोड़े स्टोन्स हो, चाहे कुछ हस्क हो, चाहे कुछ अलग डर्ट हो, गंदगी, उसको हाथ से उठाकर निकाल सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज, और वो जो क्वांटिटी जिससे हैंड पिक करके हटाना है वो थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ ए कन्वेनियंट मेथड, बहुत ही आसान तरीका और यूज़फुल तरीका होता है सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। और यहाँ पे देख रहे हैं कि a person is separating and removing some dirts or stones from the what, it may be a rice, may be wheat, or may be pulse. Threshing. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop. Crop को harvest करने के बाद field से उसके stalks और grain के साथ एक जगह रखा रहता है, एंड स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, धीरे धीरे ड्राइड हो जाता है, बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो स्टॉक्स धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, और ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन, हर एक स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन सीड्स होते हैं दैट अटैच टू इट। इमेजिन दैट द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन द हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड, मतलब आपके पास स्टॉक्स बहुत सारे हैं और उसके टॉप पर क्या है, ग्रेन्स हैं। और ऐसे जो है बहुत सारे ग्रेन्स के स्टॉक्स जो हैं आपको एक बंडल में कई सौ हैं, और ऐसे ही कई बंडल्स भी बने हुए हैं, और उनको सबको सेपरेट करना है। तो एंड हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स, तो अब कैसे फार्मर्स करेंगे? सो दैट प्रोसेस इज नॉन एज थ्रेसिंग, जो हम लोग देखने जा रहे हैं और देख भी रहे हैं। सो वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज, आप एक अलग अलग कर सकते हो गुआवा और मैंगोज को ईजिली, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गुआवाज, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू सेपरेट। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, मतलब कि पेड़ पे कुछ गुआवा वो सब हटा सकते हैं, तोड़ के निकाल सकते हो, लेकिन इस स्टॉक्स में जो हंड्रेड्स ऑफ ग्रेन चिप लगे रहते हैं उसको निकालना पिकिंग करके इट्स नॉट ईजी, सो हैंड पिकिंग इज नॉट पॉसिबल। तो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स? तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे बंडल्स हैं, पूरे बंडल्स हैं, इसमें कई इस बंडल में कई स्टॉक्स होंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे भी होंगे, और इसे हमें सेपरेट करना है, बंडल में से स्टॉक्स में से ग्रेन को अलग करना और स्टॉक्स को अलग करना है। The process that is used to separate grain from the stalks etc. is known as threshing. तो जब भी चाहे wheat हो या राइस के ग्रेन स्टॉक से अलग किए जाएं तो that is known as a threshing. In this process the stalks are beaten to free the grain. तो जब आप स्टॉक्स को देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसके ऊपर बीट किया जा रहा है, इट इज़ ऊपर उठा के पटक रहे हैं इसमें से, तो पटक कर क्या हो रहा है, तो ग्रेन अलग हो जाएगा, स्टॉक्स अलग हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे दैट कैन बी डन। समटाइम्स थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुल्लक्स। बुल्लक्स मतलब कि आप स्टॉक्स चारे रख दें और उस पर बुल्लक्स के चलाते रहें, तो उसके पैर से चलते रहेंगे, पैर चलते रहेंगे, और उसके दबाव से ग्रेन उसमें से अलग हो जाएगा, स्टॉक्स अलग हो जाएगा। पैर जहाँ पड़ेगा तो ग्रेन जब वहाँ से पड़ेगा तो अलग हो जाएगा। और
is the bullocks can be used also. Machines are also used to thresh large quantities of grain. आज के डेट में लार्ज फार्मर क्या है, एक मशीन घुसा देते हैं, वो क्या करते हैं, हार्वेस्ट भी करते हैं, वहीं पे काट भी देंगे, हार्वेस्ट करने के बाद अपने मशीन में वो लिए रहेंगे और साथ में एक तरफ ग्रेन को भी हटा देंगे, स्टॉक्स को भी। तो आज के डेट में मशीन भी खेत में फील्ड में एंटर करता है और पहले तो वो काटता है, हार्वेस्टिंग करता है क्रॉप्स का, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, यस, एंड साथ में उसको क्या करता है, थ्रेशिंग भी कर देता है। तो आज के डेट में कई फार्मर्स ये कर रहे हैं, जिससे आपके ग्रेन्स खराब भी, वेस्ट भी नहीं होते इधर उधर, आपको एक ही जगह मिल जाता है। सो दिस इज़ आल्सो द मशीन्स आर आल्सो डूइंग थ्रेशिंग्स, और उन मशीन को, दैट मशीन इज नोन एज थ्रेशर। सो द विनोइंग, make a mixture of dry sand with the sand dust और powdered dry leaves। तो एक मिक्सचर है जिसमें आपके सैंड है और विद सॉ डस्ट है। सॉ डस्ट का मतलब है लकड़ी का बुरादा है, देयर इज व्हाट, लकड़ी का बुरादा भी है, या उसमें लकड़ी का बुरादा ना हो तो पाउडर्ड ड्राई लीव्स, मतलब सूखे हुए पत्तों का पाउडर हो। तो आप जानते हैं कि यदि कहीं पर आपने मिक्सचर लिया जिसमें पाउडर्ड लीव्स आपके क्या हैं, एक पाउडर लीव्स है और एक तरफ सैंड है, तो आपको पता है कि सैंड हैवी होगा और ये आपका क्या होगा, इट विल बी लाइटर, ये क्या होगा, हल्का। और अब इसमें से इन दोनों को दो चीज़ें, एक हल्की हैं और एक क्या आपका भारी है। सो कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर, इस मिक्सचर को रख लें एंड लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। Then what we will see, can the two different components be made out easily, क्या दोनों components को अलग separate किया जा सकता है? Are the size of particles of the two components similar? Yes, हो सकता है कि यहाँ पर sand और जो sawdust हो या powdered वाले leaves हो, उनके size एक ही जैसे हों। Would it be possible to separate the components by hand picking? Hand picking से इतने छोटे छोटे particles को अलग नहीं किया जा सकता है। Is it okay? सो एक तरफ सैंड भी है उसमें, या तो आप सॉ डस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा का डस्ट है, तो आप वो मिक्स होगा तो नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो इस मिक्सचर को आप क्या करें, आप एक टेबल पर चढ़ जाएं। यहाँ पर आपने क्या देखा, एक टेबल है, इस पर आप चढ़ जाएं ऊंचाई से, और आप उस पर मिक्सचर को नीचे की ओर गिराएं, और साथ में यहाँ पे हवा भी बह रहा हो, विंड इज़ ब्लोइंग। सो व्हाट विल हैपन, जो हैवी सैंड होगा यहाँ गिरने लग जाएगा, सैंड विल स्टार्ट फॉलिंग हियर, और जो इसके अंदर सॉ डस्ट है या आपको वहाँ पर सॉ डस्ट है और कोई दूसरी हल्की चीज़ है, वो ब्लो करके दूर चली जाएगी, और यहाँ पर हमें सैंड अलग और सॉ डस्ट भी अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमारा राइस और पैडी के दाने जो होते हैं, राइस और पैडी के दाने होते हैं, और इसके चारों तरफ, इस राइस और पैडी के दानों की तरफ थोड़ा सा क्या होता है, राइस हस्क चिपका रहता है। तो यहाँ पर राइस हस्क चिपका रहता है, और साथ में जो रेड पोर्शन है वो आप समझ सकते हैं कि वो आपका, वो अंदर में राइस है। और इनको बीट करके एक जगह पर आपको क्या देखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे दाने होंगे, एंड देन बीट करके आपको राइस के साथ साथ में आपको क्या दिखेगा, देयर विल बी लॉट्स ऑफ राइस हस्क भी दिखेंगे इधर। अब इनको राइस हस्क जो होता है वो लाइटर होता है, और आपका जो राइस होता है वो क्या होता है, इट इज़ व्हाट, हैवी। तो इन द विलेज एरिया द फार्मर्स क्या करते हैं, इसी तरह लार्ज प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऊपर से आपको वो दोनों मिक्सचर को गिराते हैं, तो यहाँ पर राइस एक्यूमुलेट होने लग जाता है क्योंकि भारी है, और हस्क दूर चला जाता है। तो दिस वे देयर इट इज़ आल्सो सेपरेटिंग इट, winnowing. This process is known as winnowing. Here we can say the put the mixture in a plate or sheet of paper में रख लें, hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height, अपने shoulder height पे यहाँ पे रख लिया, and tilt slightly, उसको थोड़ा सा slightly किया, so that the mixture slides out slowly, धीरे धीरे मिक्सचर गिरे, ये नहीं कि पूरा एक साथ गिरा दिया, slowly it should fall, और उसमें से धीरे धीरे विंड के साथ लाइटर प्रोडक्ट जो है वो दूर चला जाए और हैवियर नज़दीक में गिर जाए। सो व्हाट हैपेंस
डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड द सॉडस्ट या पाउडर्ड लीव अलग हो पाते हैं, फॉल एट द सेम प्लेस, गिरेंगे या अलग गिरेंगे? इज देयर कंपोनेंट्स दैट ब्लो अवे, क्या कंपोनेंट्स दोनों दूर दूर ब्लो होंगे, अवे होंगे? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? तो ये दीज आर द क्वेश्चन है जो आपका आपकी एक्टिविटी है, तो आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे विंड क्या करेगा, आपको मैनेज करेगा दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में। हियर दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing of air, air के बहने से. And this method is commonly used by farmers to separate the lighter husk particle from the heavier seeds of rice or grain or wheat. जो भी आपके पर ग्रेन हैं वो उसको, और हस्क लाइटर होता है, हैवियर सीड्स यहाँ पर गिर जाएंगे, एंड लाइटर हस्क विल ब्लो अवे. दिस इज द वे वी कैन सेपरेट. द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड एंड द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग. तो यहाँ पर नियर बाई आपको क्या दिख रहा है, दैट ये जो ग्रेन सीड्स है वी आर नियर बाई, दे स्टार्टेड हिप, मतलब एक पाइलअप होने लग जाते हैं और ये दूर जाने लग जाता है. द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस. जब ये दूर चला जाता है तो इसको अब इसको लोग इकट्ठा करके ये गाय भैंस कैटल्स को खिलाने के लिए एज ए फॉडर यूज़ करते हैं. एंड द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स. सीविंग मतलब छानना. समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर. मुझे आटे से कुछ डिश बनाना है, खाना बनाना है, तो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. जो बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़े जो हस्क टाइप के आटे में पड़े रह जाते हैं जब फ्लोर आटा बनता है, तो उसमें से उसको छानने के लिए तो यहाँ पर नीचे आटा आ जाएगा और इसमें कुछ ब्रांड्स बड़े पार्टिकल यहीं पे रह जाएंगे. सो व्हाट डू वी डू फॉर दिस? यदि मुझे आटे में से इम्प्योरिटीज़ हटाना है तो वी यूज़ सीव, मतलब एक छन्नी यूज़ करते हैं, एंड पोर द फ्लोर इनटू इट. और इसमें हम क्या डालेंगे, छन्नी ले लिया हमने, यहाँ पर ये छन्नी है और इसमें हम लोग आटा डालते हैं, फ्लोर डाल देते हैं, एंड देन प्योर फ्लोर कम्स ओवर देयर, एंड इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ यहीं पे रह जाते हैं. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू. जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स फाइन होते हैं वो यहाँ से गिर जाएंगे, फाइन निकल जाएंगे थ्रू द होल्स ऑफ द सीव से निकल जाते हैं. वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव में ही, यहाँ पे छन्नी में ही रह जाते हैं. इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द वीट बिफोर ग्राइंडिंग. तो जब वीट जहाँ पे फ्लोर मिल होता है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे बड़े स्तर पर यहाँ पे मान लीजिए कि सारा यहाँ पर वीट को डाला जा रहा है, तो ऊपर में जो हस्क होंगे चाहे कोई स्टोन होगा हट जाएगा और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, वीट आ जाएगा. अब इस वीट को ले जाकर क्या है, फ्लोर मिल में पीस कर उसको आटा बनाया जाएगा. अब यहाँ पे मिल है, मिल में इसको क्रश कर दिया गया वीट को और उससे क्या बन गया, फ्लोर बन गया. तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो सीविंग. और बाद में आप घर में जब आटा से कुछ डिश बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सीविंग लेकर उसमें छन्नी लेकर आपको आटा बाहर आ जाएगा और कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स यहाँ रह जाएंगे. तो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई सेड दैट ये भी एक सीविंग है और यहाँ पर भी सीविंग है, मतलब छानना है. इट मीन्स यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन ए स्लैंटिंग सीव. यहाँ पर हमने क्या देखा, एक पूरा बैग हमने भरकर, बोरी भरकर यहाँ पे व्हीट डाल दिया. द सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स. उस व्हीट में से जो स्टोन थे वो और स्टॉक थे और कुछ हस्क थे सबको हटा दिया. दैट में स्टिल रिमेन विद व्हीट. जो कि आपने जब व्हीट गांव फार्मर से खरीद कर जब मिल में आया तो वहाँ पर भी फर्दर उसको सीविंग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. उसमें भी कुछ मिट्टी रह जाए, कुछ कंकड़ रह जाए, कुछ स्टोन्स रह जाए, कुछ स्टॉक्स का कुछ पोर्शन रह जाए टूटा हुआ छोटा छोटा, तो उसको भी सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सीविंग की ज़रूरत होती है और जो कि वहाँ पे रहता है. आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, हाँ फार्मर ने क्या थ्रेसिंग और विनोइंग किया, उसके बावजूद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाता है, वो तो फ्लोर मिल में उसका मालिक क्या करता है, ऑनर ऑफ दैट इंडस्ट्री फ्लोर मिल का,
वो एक स्लैंट पे वो सारा फिर प्रोडक्ट को डालता है, उसमें से छोटे छोटे कुछ स्टोन्स रह गए हों और कुछ स्टॉक्स के पार्टिकल रह गए होंगे, हस्क, वो सब सेपरेट कर देता है. You may have also noticed similar shapes being used at the construction sites to separate pebbles and stones from the sand. Sand भी आपने कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखे होंगे कि सैंड यहाँ पे डाला जाता है तो बड़े बड़े स्टोन्स अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे सैंड्स भी अलग हो जाते हैं. तो सिमिलरली sieving is being done. Let us see the activity. Bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. लाएं sieve the flour to separate any impurities in it. उसको आप sieve करें और उससे impurities बाहर अलग करें. Now make a fine powder of chalk piece. अब आप क्या करें, अब chalk piece जो स्कूल में यूज़ करते हैं, chalk से लिखा जाता है जो बोर्ड पर, अब आज के डेट में अब जैसे जब से डिजिटल बोर्ड आ गया तो चॉक का यूज़ नहीं होता है ना, तो पहले चॉक को यूज़ करते थे और उस चॉक को आप सपोज करो क्रश कर दिया एंड मिक्स इट विथ फ्लोर और उसमें आटे में मिला दिया. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय द सीविंग? क्योंकि सीविंग से जो पाउडर्ड चॉक है, चॉक और आटा दोनों बहुत क्या हैं आपके, सपोज जो पाउडर होंगे वो एक ही साथ मिले रहेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े यदि चॉक का कोई पाउडर होगा वो अलग किया जा सकता है. तो लेकिन सीविंग का पर्पस क्या होता है? इज यूज टू यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव ए डिफरेंट साइज. जो बड़े वाले सीविंग में सिंपल बड़े साइज को और छोटे साइज से अलग किया जाता है. सीविंग का यही एक पर्पस होता है. ये सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव ए डिफरेंट साइज. वहाँ पे छानकर बड़े को बड़ा वाला वहीं रहेगा और छोटे छोटे होल से छोटे फाइनल पार्टिकल्स जैसे आटा निकल गया तो वैसे ही किया जा सकता है. तो सीविंग का पर्पस ही है उन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर को सेपरेट करना जिसके साइजेस क्या हैं, डिफरेंट है. Sedimentation, decantation and filtration. So under this we have to see how to do separation of different mixed things. तो कुछ मिले हुए चीज़ होंगे, मिक्स होंगे, तो उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा. तो उसमें एक प्रोसेस ये भी है कि सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन करना होता है. तो हम यहाँ देखेंगे समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट components of a mixture by winnowing and hand picking. मतलब कुछ समय ऐसा मिलेगा कि ऐसे मिक्सचर होंगे जिसमें से कि हैंड पिकिंग और विनोइंग के द्वारा वी कैन नॉट बी एबल टू सेपरेट द मिक्सचर. तो उस केस में उस केस में सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन को देखा जा सकता है और देखते हैं कि वो कौन सा केस है. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ लाइटर इम्प्योरिटीज like dust or soil particles in a rice or pulses. तो राइस और पल्स में क्या है, कुछ वहाँ पे डस्ट है और वो लाइटर पार्टिकल्स हैं एंड उस लाइटर पार्टिकल्स और उस इम्प्योरिटीज़ को और या सॉइल पार्टिकल्स को हटाना है राइस में से, तो कैसे हटाएंगे? तो वो हमारा द हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो हम लोग क्या करेंगे, let us see. राइस और pulses are usually washed before cooking. हम लोग जनरली धोते हैं before cooking and when you add water to this, the impurities like dust particles get separated. तो जब हम धोते हैं तो उस समय dust particles जनरली क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. And these impurities go and pass through the water. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel of where it is rice or dust and why? ये क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास पानी है तो उस पानी में राइस और डस्ट में कौन सा सिंक नीचे करेगा. इट विल बी डस्ट और राइस. तो राइस इज़ हैवी, वो तो नीचे चला जाएगा, डस्ट हल्का रहेगा, पानी के साथ ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे कुछ देरों के बाद सारे राइस नीचे बैठे रहेंगे और पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो रहेंगे ऊपर रहेंगे और फिर टिल्ट करके ऊपर वाले पानी को जब हटा देंगे तो दिस वे हमारा इम्प्योरिटीज़ हट जाएगा. हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर? कभी आपने देखा होगा दिस तरीके से, दिस वे द समटाइम डर्टी वाटर इज रिमूव्ड. व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स after water is added to it, the process is called sedimentation. This process is called sedimentation. Suppose करें कि मेरे पास एक
कंटेनर है और इसमें पानी है, और पानी के अंदर हमने क्या कर दिया, इस पानी के अंदर सपोज़ करो कि हमने कुछ राइस डाल दिए, तो राइस और उसके साथ डस्ट पार्टिकल, तो जो राइस होगा, तो राइस जो है वो पानी के नीचे सेटल हो गया क्योंकि वो हैवी है, और जो डस्ट पार्टिकल्स जो हल्के हल्के होंगे, दोस डस्ट पार्टिकल्स वो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर ऊपर आ गया। तो जो नीचे हैवी हो गया, जो नीचे हैवी होके सेटल हो गया, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। और इस कंटेनर को थोड़ा यदि टिल्ट कर दिया जाए, इफ दिस कंटेनर इज tilted like this, then what will happen, then the water will come out, upper water आपका निकल जाएगा, और यहाँ पर राइस इस जगह पे एक्यूमुलेट रहेगा क्योंकि हैवी है, एंड जब अपर वाटर आपका निकल रहा है तो दिस वे आपके जो डस्ट पार्टिकल की जो इम्प्योरिटीज़ थी वो भी आपकी इसमें से निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे डिकैंटेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन। तो हमने समझा कि कोई भी चीज़ पानी में डालेंगे और हैवी होगा और वो नीचे सेटल डाउन होगा तो वो सेडिमेंटेशन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर में हल्के पार्टिकल्स ऊपर में आपको रह जाएंगे, और उसको वाटर के अपर पार्ट में को हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर के साथ थोड़ा टिल्ट करेंगे, एंड बाय टिल्टिंग द अपर पोर्शन जिसमें कि देयर इज डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, और वो टिल्ट होकर बाहर निकल जाएगा, और इस प्रोसेस को डिकैंटेशन कहा जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, when the water along with the dust is removed, this process is called decantation। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टिल्ट करके पानी निकाला जा रहा है एंड एक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा रहा है। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation। तो हम लोग कुछ और भी मिक्सचर देखते हैं जो कि जिससे चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। यही सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन का एक और तरीका से हम लोग, जैसे लिक्विड, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो, जैसे वाटर एंड ऑयल, तो ऑयल हल्का होता है ऊपर होता है और वाटर नीचे हैवी होता है नीचे होता है। अब यहाँ से इस ग्लास को टिल्ट करेंगे तो यहाँ से जो ऊपर के पोर्शन में जो ऑयल है, दिस पोर्शन हैज़ ऑयल, वो बाहर, वो पोर्शन ऑफ ऑयल दैट विल कम आउट, और ये जब बाहर आ जाएगा और नीचे इस ग्लास में पानी रह जाएगा, सो ऑयल विल बी दिस साइड एंड वाटर यहाँ पर ही आ जाएगा। तो ऑयल एक कंटेनर में हम लोग अलग कर लेंगे। तो दैट इज़ आई सेड दैट यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सो फॉर एग्जाम्पल चले देखें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। Oil and water from their mixture can be separated by this process if a mixture of such liquid is allowed to stand। थोड़े देर के लिए मिक्सचर इसको रोक दिया, शांत रख दिया जाए, for sometimes they form two separate layers। तो दो लेयर बन जाते हैं, एक वाटर लेयर एंड ऑयल लेयर। ऑयल लेयर is lighter so there it will be upper side। The component that forms the top layer can then be separated by decantation। तो ऊपर का लेयर का जो है, जो ऊपर के लेयर में रह जाएगा, उसको डिकैंटेशन प्रोसेस से वी कैन सेपरेट। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, what do you do to remove the tea leaves? So what will you do to remove the tea leaves? तो यही है कि जब आप चाय बना लेते हैं, थोड़ी देर रख दें, तो जो टी लीव्स होगा इट विल बी ऑन द डाउन साइड और ऊपर में चाय होगा। तो आप और इसको धीरे से आप टिल्ट करेंगे तो ऊपर का चाय बाहर आ जाएगा और नीचे की चाय पत्ती नीचे रह जाएगी। लेकिन जब आप टिल्ट करके निकाल लेंगे तो उसमें चाय निकल जाएगा, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा सा चाय पत्ती आ जाता है। सो हियर वील सी, यूजुअली वी यूज़ स्टेनर टू रिमूव द टी लीव्स। हम लोग जनरली
छानने के लिए छन्नी का यूज़ करते हैं जिससे कि चाय पत्ती को सेपरेट किया जा सके। नाउ हम लोग डिकांटेशन को ट्राई करते हैं। ट्राई डिकांटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल, थोड़ा ज़रूर हेल्प करता है। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, क्या आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा सा चाय पत्ती रह जाता है चाय में इस डिकांटेशन से? हाँ, रह जाएगा। नाउ pour द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, अब जब टी जो हमारा आ गया है उसको दोबारा हम स्ट्रेनर में डालेंगे और वहाँ से थोड़ा सा जो भी चाय पत्ती हमारा रह गया है स्ट्रेन में निकल जाएगा। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, अब जब इसके बात करते हैं तो क्या सारा टी लीव्स स्ट्रेनर में ही रह जाएगा? यस, यदि आप इस तरीके से जो करते हैं छन्नी से स्ट्रेनर से, तो एक प्रकार का ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो जब हम स्ट्रेनर से कोई सेपरेट करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो व्हेन वी आई सेड व्हेन वी सेपरेट things from the with the help of a strainer, that process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? आप मुझे बताएं कि which process is better। आप भी जान रहे होंगे कि बेटर प्रोसेस आपके लिए फिल्ट्रेशन ही है, जिसमें स्ट्रेनर से कर लें एक ही बार में सारी टी लीव्स जो है वो सेपरेट हो जाएगी और टी भी सेपरेट हो जाएगा। लेकिन आप डिकांटेशन से करते हैं तो ऊपर वाला टी जो चाय है ऊपर पानी से डिकांटेशन से बाहर आ जाता है, नीचे चाय पत्ती उस कंटेनर में रह जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे टी बनाया और टी में नीचे आपका क्या है, टी लीव्स है। लेकिन जैसे ही आप टिल्ट करते हो इस कंटेनर को और इसको गिराते हो, इसका दूसरे कंटेनर में आप टी लेते हो, तो इस टी के साथ साथ थोड़े से टी लीव्स, क्योंकि टी लीव्स कुछ कुछ हल्के भी होते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टी तो आपके पास आ गया, टी आपके लिए अलग हो गया बाय डिकांटेशन। लेकिन इसमें इन दिस वन यू कैन हैव सम टी लीव्स एज वेल, थोड़ा सा टी लीव्स भी रह जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टी लीव्स आ जाएगा। तो ये डिकांटेशन आपके लिए बेटर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन नहीं है, बट you can do also, लेकिन filtration is the best one. Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? क्या हमें हमेशा साफ पानी पीने को ही मिलता है? Sometimes water supplied through taps may be muddy. कभी कभी पानी जो हमारे टैप से आता है सप्लाई के थ्रू, उसमें मडी हो सकता है। जनरली रेनी सीजन में ऐसा कभी कभी हो जाता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी। रिवर और पॉन्ड में भी जो पानी कभी लेंगे तो उसमें भी मडी आ सकता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मैथड ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे मैथड ऑफ सेपरेशन देख सकते हैं। रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो वहाँ से हमने जो मडी वाटर लिया, उस मडी वाटर को दोबारा हमने इसमें कंटेनर में हमने फिल कर दिया। तो ये मडी वाटर है सपोज करें, तो मडी वाटर में, और इस मडी वाटर को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया जाए, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाए या कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दिया जाए, डिपेंड करता है कितना इसके अंदर गंदा है। सो आप क्या देखेंगे, धीरे 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 इसमें आपका जो मड है, सॉयल है, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का पानी क्या रहेगा, थोड़ा साफ रहेगा। एंड फिर अगेन आप इसको टिल्ट करके ऊपर का साफ पानी आप बाहर निकाल देंगे डिकांटेशन प्रोसेस के द्वारा। डिकांटेशन प्रोसेस। सो वी कैन से दैट यस, मडी वाटर कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वी कैन बी एबल टू रिमूव थ्रू द डिकांटेशन, बट ये प्योर पीने लायक नहीं रहेगा। बट इवन देन it can make the separation of large amount of mud from the water. Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil. आपके पास नहीं है तो अपने तरफ से मिट्टी मिला ले कुछ soil पानी में, soil to water in a glass. अब जब आपने मिला लिया तो इसमें मिट्टी गंदा हो जाएगा। एंड लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें। तो जैसे जैसे आप इसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे इसके बॉटम पे पूरी गंदगी इसके बॉटम पर सेटल हो जाएगी, पूरी गंदगी इसके बॉटम पे। और थोड़ा छोड़ेंगे तो और इसका जो बॉटम पे और थोड़ा सा और जमा होता चला जाएगा, धीरे धीरे रिलेटिवली गंदा पानी और साफ़ हो जाएगा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, द वाटर केयरफुली
एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, आप इन ऑब्जर्व करते हैं, डज स्मॉल सॉइल सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर, क्या स्मॉल सॉइल्स जो बहुत छोटे छोटे होंगे, हल्के होंगे, तो वो तो सेटल नहीं होगा, जो सॉइल पार्टिकल्स हैवी होंगे वो सेटल हो जाते हैं। सो व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, और इस तरीके से ये जो प्रोसेस हो जाएगा सेडिमेंटेशन, ये प्रोसेस क्या किया आपने, नीचे बैठ गया, तो दैट प्रोसेस इज व्हाट, सेडिमेंटेशन। और उसके बाद आप इसको टिल्ट करके पानी निकाल देंगे तो दैट इज मीन्स डिकांटेशन। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर and let the water from the top flow into another glass, दूसरे ग्लास में लें। what will you call this process, अब जब टिल्ट करके करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डिकांटेशन। is the water in the second glass still muddy, yes, अब इतना तो मडी नहीं होगा, और ब्राउन इन कलर, तो लिटिल बिट ब्राउनिश होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी जो डिजॉल्व हो गया होगा, सॉल्यूबल होगा, वो रहेगा और मड नहीं रहेगा। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या आप इसको फिर फिल्टर करेंगे तो टी स्ट्रेनर इसमें काम करेगा, क्योंकि जो अब तो जो निकालना था आपने निकाल दिया, हैवी था, तो फिल्टर करके भी थोड़ा बहुत आप इसमें से गंदगी निकाल सकते हैं। एक फ़िल्टर पेपर आता है, फ़िल्टर पेपर में भी अब इसके बाद जो गंदा पानी ग्लास में, एक तो आपके पास एक ग्लास है, आपके पास वन ग्लास दैट यू हैव व्हाट आई सेड दैट, आपने डिकांटेशन से पानी निकाल लिया, और एक ग्लास जिसमें अब क्या है, नीचे बैठा हुआ है क्या है आपका, सेडिमेंट्स। अब इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी। अब यहाँ पर क्या करें, आप एक टी पेपर या छन्नी से इसको थोड़ा सा छानें, क्योंकि बहुत महीन जो पार्टिकल, बहुत फाइनर पार्टिकल होते हैं, यहाँ पर आप एक टी, एक वी कैन हैव ना व्हाट, एक हम लोग ले लेंगे फ़िल्टर पेपर, और फ़िल्टर पेपर आपको इसमें फोल्ड करके आप इसमें इस कीप में डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे पानी डालिए, तो फ़िल्टर पेपर सारा जो गंदगी ले लेगा, और इसके बाद यहाँ से आपका प्योर वाटर नीचे एक्युमुलेट हो जाएगा। सो आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, डिड टी स्ट्रेनर वर्क करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा, वी हैव टू वर्क ऑन द फिल्टर पेपर। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू द पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ से भी हम लोग कर सकते हैं। क्लॉथ के जो कपड़ा जो होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो केवल छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलाउ करेगा जाने के लिए, और ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होंगे वहीं पर रुक जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा गिलास में पानी डिकांटेशन के बाद मिला था, दैट विल, उसमें से भी गंदगी थोड़ी निकल गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको करेगा फ़िल्टर पेपर, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, देखते हैं, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड्स, क्योंकि जो क्लॉथ है थ्रेड से बना हुआ रहता है, और दो थ्रेडों के बीच में थोड़ी सी जो स्मॉल होल्स होती है या पोरस एरिया होता है, पोर्स, उसमें से थोड़ा थोड़ा कण को रोका जा सकता है। दिस पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर, वो अपने आप को इसमें जाने नहीं देगा गंदगी को। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, आपके डिकांटेशन प्रोसेस के बाद, इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by filter that has even smaller pores, उसमें फिल्टर पेपर से भी निकाला जा सकता है, सेपरेटेड बाय ए फिल्टर दैट इवन स्मॉलर पोर्स, इससे भी ज़्यादा, इसके बाद भी पानी रह जाता है तो आप फिल्टर से करें। फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन, फाइन नहीं, बहुत छोटा छोटा पोर्स होता है, पूरी गंदगी को रोक दे पोर्स इन इट। तो यहाँ फिगर शोज दैट स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग फिल्टर पेपर, आप यहाँ पे देख रहे हैं, देर इज एन व्हाट, फिल्टर पेपर, हेयर इट इज़ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसा किया, और एक फनल टाइप बना लिया, कीप टाइप बनाकर, फिर उसको हम लोग एक किसी कीप में रख देंगे, एंड फ्रॉम देयर वो पानी को फिल्टर कर देगा। हियर यू कैन सी दैट देयर इज एन व्हाट आई सेड दैट फनल, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, यस, फिल्टर पेपर। और ये जो हमारा डिकांटेशन से मिला हुआ पानी है, अब इसको यहाँ से हम डाल रहे हैं, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर, और गंदगी, और जो डर्ट्स, जो भी वेरी स्मॉल डर्ट्स भी होंगे यहाँ पे रह जाएगा, स्मॉल डर्ट्स यहाँ रह जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग प्योर वाटर वी कैन गेट। सो अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज़ फिक्स्ड इनटू अ फनल, फनल में हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज़ फिक्स्ड इनटू द फनल, and the mixture is then poured on the filter paper, आप फिल्टर पेपर पे पॉर करेंगे मिक्सचर को, जो डिकांटेशन के बाद मिला हुआ पानी है, गंदा अभी भी है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू, और जो उसमें सॉलिड जो रहेंगे, गंदगी है, थ्रू इट पास नहीं करेगा।
द सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजली फिल्टर्ड, जब आप जो मार्केट में बॉटल में मिलता है, fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. तो this is the way filtration is being done also. ओके तो इसमें हमने क्या देखा कि एक मडी वाटर था, तो मडी वाटर को हमने क्या करना था, देर इज़ व्हाट प्योर, उसमें पानी साफ़ रखना था। तो हमने पहले सेडिमेंटेशन देखा, नीचे मिट्टी बैठी, फिर उसके बाद डिकांटेशन किया। डिकांटेशन के बाद जो हमें वॉट एवर द वाटर वी हैव गॉट, अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, उसको हम लोग कपड़े के साथ भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद द फैब्रिक्स, बट वहाँ से भी उतना ज़्यादा पानी साफ़ नहीं मिला। फिर उसके बाद वी हैव डन विद द फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर इज़ हैविंग वेरी फाइन पोर्स, वो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और डस्ट्स को सभी रोक लिया, एंड वी हैव गॉट फाइनली प्योर water. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese पनीर in our homes. तो फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस हम लोग अपने कॉटेज चीज़, जिसको पनीर कहा जाता है, घर में बनाने वाला चीज़ जो आप बना सकते हैं उसको पनीर कहेंगे। And you might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice, हम लोग क्या करते हैं, few drops of lemon juice are added to milk as it boils. जैसे ही वो बॉयल होगा उसमें हम थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डाल देंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, पनीर। दिस गिव्स मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर, सॉलिड पनीर उसमें अलग हो जाएगा, एंड लिक्विड भी रहेगा। अब हमें इस लिक्विड को और सॉलिड पनीर को अलग करना है। देन व्हाट विल डू, द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लॉथ्स और स्ट्रेनर। स्ट्रेनर या फाइन क्लॉथ से हम उस सॉलिड पनीर और उसके साथ जो पानी है उसमें हम लोग पोर करेंगे, एंड देयर आफ्टर हमें उस स्ट्रेनर या कपड़े में हमें क्या मिल जाएगा, पनीर, और पानी हमें सेपरेट आउट हो जाएगा। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. तो यदि आपसे पूछा जाए what is evaporation, the process of converting water into vapor, the process of converting, यहाँ पे you can see that there is a water is there, and this water is by the heat of the sun they started evaporating. और जब ऊपर गया तो ठंड से कंडेंस होके फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना दिया, ये क्लाउड होगा। तो नीचे क्या हुआ, एवापोरेशन। क्या हुआ, ये एवापोरेशन। तो एवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब यहाँ से ये ऊपर गया, ये क्लाउड बन गया कंडेंसेशन के बाद में ये विंड से ये क्लाउड आपके हमारे लैंड पे आ जाता है, फ्रॉम द सी टू द लैंड। अब यहाँ पे भारी होकर ये रेनफॉल कर देता है, फिर ये नदियों से फिर ये पानी समुद्र में ही चला जाता है। तो दिस वे लेट अस सी फर्स्ट एवापोरेशन, लेट अस सी फर्स्ट एवापोरेशन। द एवापोरेशन हमने क्या देखा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड evaporation, and the process of evaporation take place continuously wherever water is present. वहीं पर होगा जहाँ पर पानी होगा। So where do you think salt comes from? आपको क्या लगता है salt कहाँ से आता है? salt हमारे समुद्र में होता है, सी में होता है। सी इज़ ए सलाइन वाटर, और या ओशियन भी बोल सकते हैं कि ओशियन बहुत बड़ा, सी जो होगा बड़े लेवल पर, बड़े लार्ज स्केल पर, दैट इज़ ओशियन। यस आर नॉट? तो सी वाटर, ओशियन वाटर क्या है, उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, उसको सलाइन वाटर बोलते हैं या सॉल्ट वाटर भी। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट मिक्सड इन इट। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। उसमें से कुछ सॉल्ट जो होते हैं कॉमन होते हैं, जो हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं। हियर यू कैन सी दैट इट इज़ अ सी एरिया। ये आपका क्या है, सी एरिया है, और यहाँ से हमने नियर बाई रीजन से हमने यहाँ पे एक गड्ढा कर लिया, सपोज़ एक गड्ढा कर लिया और यहाँ सी वाटर ले आए। और सी वाटर, अब इस रीजन में सी वाटर है, अब सी वाटर सन के हीट से, गर्मी से जो एवोपरेट हो रहा है, वाटर एवोपरेट हो रहा है, और एवोपरेशन करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर इन दिस रीजन देर विल बी एन व्हाट एक्यूमुलेशन ऑफ, देर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ, यहाँ पे आपको सॉल्ट का आपको लेयर दिख जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्ट लेयर आपको क्या है, एवोपरेशन प्रोसेस से हम लोग पानी को अलग कर सकते हैं और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। सो हियर
we can say that when sea water is allowed to stand in shallow pits, यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे हैं in the shallow pits, तो when the sea waters is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight, और वहाँ पर shallow pits में water क्या होगा, it will be heated, जो sea water का water है वो heated by the sunlight and slowly turns into water vapor through the process of evaporation. In a few days the water evaporates completely. कुछ दिनों में क्या होगा, वाटर जो होगा यहाँ से टोटली क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, एंड लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स, और वहाँ पर सॉलिड सॉल्ट छोड़ देगा, और कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड, वहाँ से हम उसमें से कॉमन सॉल्ट ले लेंगे फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन, और फर्दर प्योरीफाई करके वह हमारे घरों तक पहुँच जाता है. यूज ऑफ मोर देन वन मैथड ऑफ सेपरेशन. We have studied some methods for separation of substances from their mixtures. Mixture में से substances को अलग करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें देखी. Yes, hand picking, threshing, winnowing and sedimentation, decantation, filtration, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं. Evaporation, and there can be some other methods also. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. तो इस हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस इस वर्ल्ड में, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, सो द पर्टिकुलर वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट होगा सेपरेट करने के लिए. वी हैव टू नो अदर्स मेथड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस इन द मिक्सचर. सो इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स, और दूसरे मेथड्स को भी हमें यूज़ करना होगा. एंड यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक फ्लास्क देख रहे हैं, यहाँ से हीटिंग दी जा रही है और पानी एवोपरेट होगा फिर बाहर आएगा. यहाँ पर कुछ देख रहे हैं. लेट अस सी हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. हम लोग क्या लेते हैं, सैंड एंड सॉल्ट का एक मिक्सचर लेते हैं. तो उसमें सैंड भी है और क्या है, यस, सॉल्ट भी है. सो हाउ विल यू सेपरेट दिस. आप अपने दिमाग में सोचे कैसे सेपरेट करेंगे. देखिए, सॉल्ट हटाने के लिए तो एक ही तरीका है कि आप उसको, वो पानी में डिज़ोल्व हो सकता है. सैंड जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है पानी में, नीचे सेडिमेंटेशन होता है. तो पहले आप क्या करें, सैंड एंड सॉल्ट को लें और पानी में डाल दें. तो आप जैसे ही सैंड एंड सॉल्ट को लेंगे, वाटर में डालेंगे, देन सैंड जो होगा वो नीचे सेटल्ड सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और ऊपर का जो पानी होगा उसमें सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल है, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा. अब डिकांटेशन प्रोसेस से हम क्या करेंगे कि ऊपर का पानी अलग कर देंगे. तो जब ऊपर का पानी, वाटर हम लोग अलग कंटेनर में लेंगे तो उसमें वो पानी जो वाटर होगा वो सॉल्ट वाटर होगा. और इस तरीके से हमने सैंड अलग कर दिया. अब हमारे पास क्या है, सॉल्ट वाटर, वाटर है जिसमें सॉल्ट है. और आप जानते हैं कि सॉल्ट वाटर को क्या है, हीटिंग देंगे, एवोपरेशन करेंगे, पानी हमारा अलग आ जाएगा और सॉल्ट अलग कर सकते हैं. दिस वे हम लोग कर सकते हैं. लेकिन हम लोग सैंड एंड सॉल्ट को एक जगह रख दें और उसको हैंड पिकिंग, विनोइंग इस मेथड से करें तो नहीं होगा. वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट. तो आपको सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर एक बीकर में रखें और उसमें साथ में हम, बीकर एक प्रकार का ग्लास जैसा, इस शीशा का बड़ा बॉटल टाइप का होता है, एंड लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. कुछ देर के लिए वहाँ पे बीकर को छोड़ दें. सो डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम. और धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा, यस, द सैंड जो होगा नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, सेडिमेंटेशन होगा. एंड द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकांटेशन और फिल्ट्रेशन. धीरे धीरे हम वो टिल्ट करके ऊपर का पानी जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व है उसको अलग कर लेंगे, नीचे सैंड सेटल हो जाएगा. अब हमने जो डिकांटेशन से जो हमने लिक्विड लिया है, वाटर है, उसमें क्या है, अब उसमें सॉल्ट है. अब ये हमारा डिकांटेशन के प्रोसेस से हमें मिला. तो आई सेड व्हाट डज द डिकांटेड लिक्विड कंटेन. तो डिकांटेड लिक्विड में क्या है, व्हाट इज देयर इन द डिकांटेड लिक्विड, यस, देयर इज व्हाट, सॉल्ट. व्हाट इज देयर, salt is there. Is it okay? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Yes, there is a, what I said that इसमें क्या है, yes, tell me. Yes, it has salt. Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. अब decanted liquid से हम लोग को क्या करना है, salt and water को separate करना है.
देन ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लीड। अब एक कंटेनर में हम लोग एक केटल में डाल देंगे और उसको हीटिंग करेंगे, क्योंकि लिक्विड में से सॉल्ट अलग करने का मतलब ही है एवोपरेशन, और उसके लिए हीटिंग देना होगा। एंड हीट द केटल फॉर सम टाइम, और उस वाटर जिसमें सॉल्ट है वो केटल में डाल दिया एंड हीट किया फॉर सम टाइम के लिए। एंड देन देयर आफ्टर दैट लेट अस सी, एंड नाउ यू कैन सी हियर द हीट इज कमिंग हियर, और इससे वाटर गर्म हो रहा है एंड इसके इस स्पाउट से ये वाटर बाहर आ रहा है एंड वेपर बनकर, स्टीम बनकर। तो ये हमारे पास क्या है, वेपर है, जिसको स्टीम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप गर्म करेंगे तो एवोपरेशन होगा, एवोपरेशन से वेपर बाहर आ रहा है, वाटर वेपर। और यहाँ पर हमने ऊपर में एक लीड ले लिया है और उस पर हमने क्या रख दिया है, आइस। व्हाट इज देयर, आइस। अब ये आइस जैसे ही वेपर आ रहा है, इसको ठंडा मिल रहा है तो ये कंडेंस हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस, किसका कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन किसका हो जा रहा है, वाटर वेपर, फिर वो लिक्विड में बन जा रहा है। लिक्विड बन के हमने दूसरे कंटेनर में इसको ड्रॉप कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमें दोबारा वाटर मिलते जा रहा है। स्लोली एंड स्लोली इसमें से सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। दिस वे डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। स्पाउट ऑफ द कैटल से जो स्टीम और वेपर आ रहा है, यस हैव यू सीन। टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। एक मेटल प्लेट ले लिया, उस पर कुछ आइस रख दिया एंड होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट, और जहाँ से स्टीम निकल रहा है स्पाउट से वहाँ पे रख दिया। एंड द केटल एज सॉन इन द फिगर, आप देख सकते हैं। सो आप देखते हैं, क्या देख रहे हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ, और धीरे धीरे केटल के सारे पानी को बॉयल करने दे, वेपर में कन्वर्ट होने दे। एंड देयर आफ्टर व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट cooled with ice, और मेटल प्लेट किससे ठंडा हो चुका है, आइस से ठंडा हो चुका है, एंड इट कंडेंसेज एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। इसके ठंडा होने की वजह से वहाँ पर वाटर वेपर कंडेंस हो जा रहा है एंड द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट एंड वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम। स्टीम का कंडेंसेशन हो गया, इसी कंडेंसेशन से समुद्र के ऊपर में क्लाउड्स बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म is called condensation. So what is condensation? The process of conversion of water vapor into its liquid form is known as condensation, or is called condensation. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? आपने कभी देखा होगा कि कभी कंटेनर में आपको एक दूध दिया गया, दूध के साथ उसके ऊपर एक लीड लगा दिया गया उस वेसल के ऊपर, और आपने देखा होगा जैसे ही हटाएंगे तो ऊपर में जो लीड होता है थोड़ा ठंडा होता है, उसमें जो पानी जाकर कंडेंस हो जाता है। सो हैव यू एवर सी द वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर द प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क, जिसमें मिल्क रखा जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कभी, यदि नहीं किए हैं तो आप ऐसा करके देखें। आप गिलास दूध लें, उसके बाद आप उसको कवर कर दें थोड़ा एक ढक्कन से, किसी लीड से, किसी से। और यदि आइस रखना चाहते हैं तो आइस रखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी वो वाटर वेपर बनेगा। आइस मत रखें, ढक्कन रखें तो थोड़ा सा वो, क्योंकि ढक्कन गिलास के कंपैरिजन में क्या है, ठंडा है, तो जो भी वाटर वेपर दूध से निकलेगा वो जाकर उस पर कंडेंस होगा, और आप जैसे ही ढक्कन हटाएंगे तो उस पर से वाटर ड्रॉपलेट जमा हुआ कंडेंस रहेगा। After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? अब जब पूरे केटल में से ज़्यादा पानी evaporate हो गया, अब उसमें क्या बचा? So we have thus separated salt. उसमें salt बचा. So this way we have separated salt, sand and water using process of decantation. पहले हमने decantation किया था और अलग से हमने छान लिया, और साथ में filtration भी कर सकते हैं, नहीं उसके बाद हमारा evaporation हुआ and condensation. The major part is decantation, evaporation and condensation. We have been able to separate, yes, sand and salt. So the Paheli is a girl faced a problem while recovering salt mixed with the sand. अब पहली एक गर्ल है, she is facing a problem, कैसे रिकवर किया जाए salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. Yeah. She then tried methods suggested in this activity 7 we have done to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. Okay,
सो व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, तो इसमें क्या गलती हो गया. विल हैव टू सी आल्सो दिस. नाउ द क्वेश्चन इज, आई सेड, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? नहीं, वाटर एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिजॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी का एक पावर होता है डिजॉल्व करने का. जैसे आप, यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ, हाउ मैनी रोटीज यू कैन ईट. somebody can say 3 rotis, 2 rotis, means chapati. How somebody will say 5 chapati, 6, 7, 8, 9, 10. सबका एक अपना एक लिमिट होगा, उसके बाद बोलेंगे they can't eat because there is no space in the stomach to eat. एक फीलिंग आती है तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन. इसी तरह वाटर भी एक गिवन ग्लास में मान लीजिए कि 200 ml वाटर है, 200 ml वाटर है, तो उसकी भी कैपेसिटी है कि इतना नमक ले सकता है, तो वो नमक डिज़ोल्व होगा. उसके बाद यदि आप नमक डालेंगे, यदि उसके बाद नमक डालेंगे तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी कैपेसिटी वाले को डिज़ोल्व कर लिया, और बचा हुआ सॉल्युबल नहीं होगा, उसमें सॉल्ट दिखेगा. तो यहाँ पे कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सॉल्ट डालते जाओ, भरते जाओ गिलास में, क्या वो डिज़ोल्व करते जाएगा? आप भी सोचो नहीं होगा, कुछ हद तक करेगा. तो इसका मतलब है कि वाटर हैज़ गॉट इट्स सैचुरेशन, वो सैचुरेट हो गया, अब वो सॉल्ट को डिज़ोल्व नहीं करेगा. इसी तरह किसी चीज़ को भी आप कहीं पे डिज़ोल्व करें, शुगर को पानी में डिज़ोल्व करें, कुछ देर के बाद वो डिज़ोल्व नहीं होगा, शुगर वैसे ही का वैसा दिखेगा. तो अपने सैचुरेशन के बाद कोई भी चीज़ अपने आप में पानी डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा. सो in the chapter 4 we have seen, like we found that many substances dissolve in water and form a solution. आपने देखा था कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्ट, शुगर, और सॉल्यूशन बनाता है. We say that these substances are soluble in water. जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, soluble होता है, that is known as what? Soluble in water. So what will happen if you go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? Fixed quantity of water का मतलब है कि यहाँ पर हमने fixed कर दिया कि there will be a 200 ml of water. वो हम लोग चेंज नहीं करेंगे. पानी ज़्यादा रखेंगे तो उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा होते चला जाएगा, पानी फिक्स रखना है हमें. तो फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में अब हम लोग कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सॉल्ट या शुगर, तो उसके बाद क्या होगा? So you will need a beaker or a small pan or a spoon and a salt and a water. और ग्लास में हमने क्या लिया? For a half cup of water in the beaker. बीकर में हमने half cup of water ले लिया. इसमें हमने क्या ले लिया? पानी हमने, what we have taken? Water has been taken in it. And add 1 teaspoonful of salt and stir it well. अब उसमें 1 चम्मच हम सॉल्ट डालकर एक डालते हैं और उसको वेल करते हैं, और until, जब तक ये करते रहते हैं, सॉल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली. ये तब तक हम 1 चम्मच डाला, एंड देन 1 टीस्पूनफुल हमने पूरा डाल दिया, देन अगेन स्टीयर किया, फिर 1 टीस्पूनफुल डिज़ोल्व हो गया, अगेन डाला, अगेन हम लोग डाल रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं, डिज़ोल्व हो जा रहा है. लेकिन एक समय आएगा जब हम डालेंगे और स्टीयर करेंगे, इट विल नॉट डिज़ोल्व. Again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt, 1 teaspoon of salt at a time, and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salts remain undissolved and settles at the bottom of the beaker? और वो नहीं डिज़ोल्व हुआ. आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून, कुछ स्पून मिलाने के बाद अब उसके बाद डाल रहे हैं, तो वो अब उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, और कहाँ हो गया? सेडिमेंटेशन की तरह सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर पर हो गया. इफ़ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. जितना पानी लिया था उसमें अब उस एक लिमिट के बाद क्या है? अब सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है. इसका मतलब है द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. अब सॉल्यूशन क्या हो चुका है? दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन, सॉल्ट और पानी से मिले हुए, कोई दो चीज़ मिलकर पानी में मिलाओगे तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा. एंड इस तरीके से आप बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो है वाटर के साथ जो है वो सैचुरेट हो गया है, इट हैज़ बीन सैचुरेटेड. अब इसमें आप जितना भी डालोगे वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा. Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. यही चीज़ गलती हुई कि जब पहेली ने सॉल्ट और सैंड मिले हुए में से जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को निकाल रही थी, तो यहाँ हुआ था. Perhaps the quantity of salt was much more than
that required to form a saturated solution. तो वहाँ पर जो डाला गया पानी में वो वेपोरेशन के बाद उतना निकला नहीं। तो जब पानी में आप सेचुरेटेड पहले ही था, द सॉल्ट वाज मच मोर देन द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो जितना उसमें नमक होना चाहिए उससे ज़्यादा नमक डाला हुआ था, तो इस कारण से वो डिज़ोल्व ही नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपने 20 ग्राम सॉल्ट डाला और जबकि उसमें 15 ग्राम सॉल्ट की ही थी, तो आप वो क्या होगा, पानी जब आपने सेटल किया, यहाँ पर पानी था यहाँ पर, यस, और नीचे जो नमक सैंड सेटल हुआ, तो सैंड के साथ ही थोड़ा बहुत नमक भी 5 ग्राम नीचे 5 ग्राम सॉल्ट सेटल हो गया, क्योंकि इसकी डिज़ोल्व की कैपेसिटी कितनी है, 15 ग्राम ही है, और आपने डाला कितना था टोटल, 20 ग्राम सॉल्ट और मान लीजिए 20 ग्राम सैंड डाला था। तो उसमें से 15 ग्राम तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया, 5 ग्राम नहीं हुआ, तो ये यहाँ पर सेटल हो गया किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ हो गया, यस, सैंड के साथ। अब आप डिकांटेशन प्रोसेस करके इसमें से जो निकालेंगे और ये जो पानी आएगा, इस पानी में जो डिकांटेशन के बाद आया, तो इसमें केवल 15 ग्राम ही सॉल्ट डिज़ोल्व होगा, 15 ग्राम। अब इसको एवोपरेट करोगे तो नीचे कितना मिलेगा आपको, एवोपरेशन के बाद आपके पास जो सॉल्ट जो नीचे मिलेगा ओनली 15 ग्राम। इसीलिए द पहेली इज नॉट एबल टू गेट what desired required amount of salt after the process of yes evaporation and all, क्योंकि वहाँ पे salt जो था more than saturated solution, the undissolved salt would have remained mixed with the sand, के साथ ही मिक्स रहा and could not be recovered, और उसको हम लोग रिकवर ही नहीं कर सकते हैं। and C could solve the problem by using a larger quantity of water। अब पहेली ने क्या किया, अब पहेली ने उसमें क्या कर दिया, ज़्यादा पानी डाला, और जैसे ही ज़्यादा पानी डाला तो वो नमक क्या हो जाएगा, अब डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया। पहले कम पानी था तो उसकी इतनी कैपेसिटी थी 15 ग्राम, अब पानी आप ज़्यादा डाल देंगे तो दोबारा डिज़ोल्व हो जाएगा। अब वो डिज़ोल्व करके डिकांटेशन थ्रू हम लोग 20 ग्राम ले सकते हैं। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। लेकिन सपोज़ करो कि पहेली के पास अब ज़्यादा पानी डिज़ोल्व करने के लिए है ही नहीं, कि जो सैंड के साथ सॉल्ट है, तो अब क्या करना है, इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सेचुरेटेड। यदि सपोज़ करें कि यहाँ पर एक कंटेनर है, इफ़ द कंटेनर इज़ देयर जिसमें व्हाट सॉल्ट इज़ देयर, इसमें से 15 ग्राम तो आपको क्या है, डिज़ोल्व हो गया, सॉल्युबल है, लेकिन 5 ग्राम क्या है, नीचे 5 ग्राम सेटल है। तो यदि आप इसमें आपके पास पानी नहीं है, देन व्हाट विल यू डू, कि इसको अब डिज़ोल्व करना है, तो यहाँ पे आप नीचे से हीटिंग देंगे, व्हेन यू विल गिव हीटिंग, तो हीटिंग से ये 5 ग्राम सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अब उसके बाद डिकांटेशन से आप निकाल सकते हैं। So what the पहेली has done, let us try and help पहेली out कि ये कैसे सॉल्ट सारा उसको मिल सके जो डिज़ोल्व पानी में जो है सैंड के साथ मिक्स। टेक सम वाटर इन बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt। तो हम लोग उसमें करते जा रहे हैं। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये तो आपको समझ में आ गया। नाउ एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड की सॉल्यूशन का मतलब उसमें आप डिज़ोल्व नहीं करने की ताकत है। एंड हीट इट, व्हाट डू यू फाइंड, यदि आप उसको डालोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है लेकिन इसमें सॉल्ट और डालोगे और यदि हीटिंग करोगे तो वो और डिज़ोल्व कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यस, हीटिंग इज बिंग डन। तो व्हाट हैपेंड टू द अनडिज़ोल्व सॉल्ट, जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था इन द बॉटम ऑफ द बीकर, अब हीटिंग दोगे तो क्या हो जाएगा, यस इट विल व्हाट हैपन, इट विल डिज़ोल्व। यदि हीटिंग दोगे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसकी पावर नहीं है डिज़ोल्व करने की, अब तब वहाँ पे हीटिंग दोगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। डज इट डिज़ोल्व नाउ, यस इट इज़ डिज़ोल्व नाउ। इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, यस हम लोग थोड़ा सा और सॉल्ट भी उसमें मिक्स कर देते हैं एंड हीट करके। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इस हॉट सॉल्यूशन को ठंडा करें। जैसे ही ठंडा करेंगे, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन,
यदि ठंडा करेंगे तो जो डिज़ोल्व, जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एक्स्ट्रा सॉल्ट जो डाला था आपने, जैसे ही ठंडा करोगे तो वो फिर दोबारा बीकर के नीचे, क्योंकि वो गर्म पानी की वजह से डिज़ोल्व हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स टूट गए और पानी के साथ जुड़ गए। लेकिन जैसे ही वो आप ठंडा करोगे दोबारा वो नीचे बीकर में बैठ जाएगा। The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. यदि आपसे ये पूछे कि चीनी, और यदि आप गिलास में मिलाए जा रहे, एक समय आएगा कि गिलास में चीनी नहीं मिलेगा, लेकिन चीनी को और मिलाना है तो उसको गर्म करो, चीनी मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि घर में खीर और चाशनी वगैरह बनता है तो हम जब गर्म करते रहते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा मिला सकते हैं, लेकिन उस पानी को ठंडा करो तो नीचे आपको चीनी का बुरादा बैठ जाएगा। सो इट मीन्स कि यदि हम हीटिंग से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग चीज़ें उसमें सॉल्ट हो, शुगर हो, वो इसको सॉल्यूट एक्चुअल में कहा जाता है, उसको मिला सकते हैं। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? तो क्या पूछा जा रहा है कि डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? चाहे वो 15 ग्राम नमक ले रहा है तो 15 ग्राम चीनी लेगा, थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन पूरा नहीं। Let us find out. Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. 2 glasses लें, उसमें आप में आधा कप पानी डालें and add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. तो आप उसमें तब तक करते रहें जब तक कि सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है। Go on adding 1 teaspoon at a time till the solution saturate. जब तक कि उसमें अब डिजॉल्व ना हो, जब तक कि सैचुरेट हो जाए। Record the number of spoons of salt that dissolved in water. और उसको अपना टेबल पॉइंट 5.2 में देखेंगे। Now repeat the same activity with sugar. अब यही टीस्पून हम लोग शुगर के लिए करेंगे। Repeat this with some other substances that are soluble in water. और करते हुए देखें क्या आपको सेम नंबर ऑफ स्पून लगेगा या नहीं लगेगा। आप ये करें और ये what do you notice from the table 5.2, वो आपको टेबल में आप उससे नोटिस करें और उससे बताएं कि क्या होगा। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट? क्या वाटर अलग सब्सटेंसेस को अलग अमाउंट में डिजॉल्व करता है? तो मेरी तरफ से यस है, लेकिन आप अपनी तरफ से जाके चेक करें कि एक ही ये अमाउंट है 200 ml, सॉल्ट हो सकता थोड़ा ज़्यादा हो, शुगर थोड़ा कम हो डिजॉल्व सैचुरेशन को लेकर। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science lab. और उसमें कुछ साइंस लैब में भी यूज़ होता है। जब बड़े होंगे, आप क्लास 8th में जाएंगे, दैन यू कैन बी एबल टू सी साइंस लैब वगैरह। 8th 9th जब भी आपके स्कूल में लैब में जाने का मौका मिले। वी ऑल्सो लर्न दैट सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन ए लिक्विड। और ये जो सब्सटेंस को लिक्विड में डिजॉल्व करोगे तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और सब्सटेंस को सॉल्यूट कहा जाता है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। अब वो जब वो सैचुरेट हो जाएगा, जब उसमें मोर ऑफ सब्सटेंस आप डालोगे, इट कैन नॉट डिजॉल्व। सो लेट्स recap of this chapter. Hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixtures that we have studied. Husk and stones could be separated from grains by hand picking. छोटे हों बड़े बड़े हों तो husk is separated from the heavier seeds of grain by winnowing. Yes. Difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. जब different हो मिले हुए तो उसको sieving छान कर separate कर सकते हैं. In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. Filtration can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid. और filtration से हम लोग insoluble solid को हम लोग separate कर सकते हैं, yes, filter paper लेकर भी. Evaporation is the process in which liquids get converted into vapor. आपने देखा, and evaporation can be used to separate a solid dissolved in liquid. evaporation को उसमें जब solid कोई dissolve हो, soluble हो, और उसको निकालने के लिए evaporation का process लिया जाता है. A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. Yes,
कोई सब्सटेंस यदि किसी सॉल्यूशन में आप ज़्यादा ना डिजॉल्व हो तो दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन बाय हीटिंग, और यदि सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है उसमें और डिजॉल्व करना है देन इट कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। अब यदि शुगर को मिलाओगे तो आप डिफरेंट डिजॉल्व करेगा, सॉल्ट को करोगे तो डिफरेंट अमाउंट का डिजॉल्व करेगा सैचुरेशन को लेकर।